This video is going to be the most important video of your UPSC career. Is this a clickbait or is this just the truth? I'll leave it up to you and your wisdom to decide so. Watch this video completely and entirely, maybe at 1.25 or maybe at 1.5, however suit you. Do not skip anything, and if at the end of this video you feel that it was a clickbait and I wasted your moments and your time and your precious time, your precious internet data, then you can do whatever you want. You can unsubscribe the channel, you can leave hate comment, you can dislike the video, however you want. But if there is any truth, any iota of truth in what I'm going to tell you today, and if you really think that this video is one of the most important videos for your UPSC career, then it is your responsibility. What is your responsibility? To make it reach the masses. बिकॉज हमारे पास और कुछ नहीं है यार. वी डो नॉट हैव रिसोर्सेज, वी हैव नथिंग, वी हैव नो बैकिंग. हम 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं. वी आर जस्ट अ वॉइस इन दिस अनएथिकल इंडस्ट्री. इन द चेम्बर्स ऑफ साइलेंस वी आर अ वॉइस. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें आगे तक लेके जाएं. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ़ यू थिंक that it was helpful, you will tell us in the comments. You will hit that like button. I'll keep it as short as possible. Let us begin. A very good evening. Namaskar. This is Satyam Jain and you are listening to me at Understand UPSC. And in this particular video, I'll be telling you some very, very important truths that were never told to you before. I don't know why. Or maybe I knew, but I don't want to discuss that. So we'll jump right on to it. There will be 5 things in this particular video that I'll be talking about. A context where I'll talk about some very important things before I begin the video. Then I'll talk about what is going on in the market, in the industry, which is completely wrong and completely misleading on the name of paid guidance. Big bold capitals में बोल रहा हूँ, paid misguidance है ये. कोई guidance नहीं है इसमें. And I'll be showing you proofs from the big 5. ये बिग 5 का मैं वीडियो में कहीं नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि कौन से हैं ये बिग 5. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट देम. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट देम. यहाँ पे क्योंकि मेरे को प्रूफ दिखाने थे तो मैं सिर्फ लेके आया हूँ 50 भी लेके आऊँगा तो सेम है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल बी शोइंग यू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ्स. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम 5 सोर्सेज. तो नेगेट करने के लिए हम इक्वली बैलेंस चीज़ देंगे. और ये सिर्फ 5 सोर्सेज से इसलिए है क्योंकि सिर्फ 5 सोर्सेज के ही अवेलेबल हैं. इससे ज़्यादा अवेलेबल होते तो हम वो भी निकाल के लाते आपके लिए. एंड दिस इज ऑल्सो मोमेंट टू थैंक एवरीबडी हु सपोर्टेड अस इन ब्रिंगिंग दीज डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ्स फॉरवर्ड. इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 to amazing aspirants who I interacted with in the past week, who really wanted to do something for the aspirant community and this came forward. All the proofs that are used in this particular video, all the documents that are used in this particular video are either available in public domain or have been provided to us by the aspirants themselves. हमने कहीं से कोई इलीगल मेथड से ये नहीं ऑक्यूपाई किए हैं, या तो पब्लिक डोमेन में है या हमें एस्पायरेंट्स के थ्रू ही मिले हैं. Then I'll be showing you my own copy where I'll be showing you कि क्या इशू है and how this relates to me and what are the implications for me. And I'll also be showing you Shivin's copy क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया था कि we will do a separate video on his evaluated files, but since I do not have a lot of time तो मैं उसको इसी में इंक्लूड करूँगा. It will just be a 2-minute bit. At last, what are the implications of this complete paid misguidance for you? इस पूरे पेड मिसगाइडेंस के पहाड़ का आपके लिए क्या इंप्लीकेशन है? हाउ इज इट इफेक्टिंग यू? वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो? वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड विल बी डिस्कस्ड एंड टोल्ड टू यू. ये 5 चीजें बात होंगी इसमें. आपको समझ में आए तो ठीक है. इसके बाद I am not going to make any video on this topic. This will be my last video on this topic क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता आपको. अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, else it's your career, you need to decide. Before starting, I would just like to point out to some very important contexts here. The first thing is that क्या कर लोगे मेरे को टारगेट करके? I have heard things about my family. I have heard things about my friends. I have heard things about me. ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग के ओनर बोल रहे हैं, इवैल्यूएटर्स बोल रहे हैं, कुछ हेट कमेंट्स बोल रहे हैं. क्या कर लोगे इससे? विल यू बी एबल टू चेंज द फैक्ट? बस ये बता दो. एक काम करते हैं ना, गलती मान लेते हैं. गलती करी है ना, समझ में आ गया है ना, तभी टारगेट कर रहे हो तो गलती मान लो.
आई अप्रिशिएट इट। मुझे टारगेट करके कुछ नहीं होगा यार। मैंने पहले भी बोला है, आई एम नो बडी, आई एम नो बडी, आई एम जस्ट अ वॉइस। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और होगा। सो आई एम जस्ट अ वॉइस, जस्ट रिमेंबर दिस। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे जिन बड़ी बड़ी कंपनीज की यहां पे बात होगी और जिनकी नहीं भी होगी, 50-50 साल पुरानी है, एंड दे हैव कनेक्शन एट एवरी लेवल, टॉप मोस्ट, डीपेस्ट। मतलब ऐसे हैं कि शॉर्ट रील्स चलती हैं कि अरे यूपीएससी के एक इवैल्यूएटर से मैं तो एक दिन बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे कॉपी इवैल्यूएट कर देता हूं, पहले पेज पे नंबर दे देता हूं, फिर काटते चले जाता हूं। आपके इतने डीप कनेक्शंस हैं, आपके यहां पे यूपीएससी मेंबर्स, आपके यहां पे यूपीएससी इवैल्यूएटर्स, आपके यहां पे यूपीएससी इंटरव्यू मॉक पैनलिस्ट बैठे हैं। स्टिल you do not give even 2 minutes time to really bring what the aspirant is lacking, to reveal the truth. Now this is a very big question that has been coming up again and again. Are we against the coachings? No, we are not against coachings. आप कमाओ पैसा, आप लूटो स्टूडेंट्स को, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या है, हम तो जितना लूटने थे लूट लिया, अब आप बाकियों को लूटो, वी डू नॉट केयर। वी आर नॉट अगेंस्ट कोचिंग्स, दे आर हेल्पफुल। जहां हेल्पफुल होते हैं मैं मेंशन भी कर देता हूं, मैं बोल देता हूं विजन की मंथली मैगजीन पढ़ लो, विजन का वैम पढ़ लो, ओनली आईएएस का यहाँ पे प्रहार पढ़ लो। डू आई नॉट से दीज थिंग्स? मैं क्रेडिट देके बोलता हूं यार। तो वॉट आर वी स्पीकिंग अगेंस्ट? वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस एंटायर पेड मिसगाइडेंस। आप पैसे ले रहे हो और आप मिसगाइड कर रहे हो। क्यों नहीं बदल रहे हो आप अपना स्टेटस को? एंड दिस इज अ कॉल टू द एंटायर एस्पायरेंट कम्युनिटी। आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये मान के बैठ गए हो कि कोई चीज 50 साल से चलती आ रही है तो वो ठीक है। फिर तो गलीलियो और सोक्रेटिस ये लोग बेफालतू में मर गए ना सब। कोपरनिकन रेवोल्यूशन आनी ही नहीं थी फिर तो, क्योंकि अर्थ तो फ्लैट है, क्योंकि सूरज तो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। यार प्लीज हैव एन ओपन माइंड। और मुझे इस बात पे जज मत करो कि मैं एक एस्पायरेंट हूं या फिर मेरी कम उम्र है। इस बात पे जज मत करो मुझे, फैक्ट पे जज करो, ट्रूथ पे जज करो। तो अपना दिमाग खोलो। मेरा बेनिफिट नहीं है इसमें, इट इज फॉर योर बेनिफिट। मेरा क्या यार, मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आई एम आउट ऑफ दिस सिस्टम। मेरे को 5 रुपए भी नहीं देने हैं किसी को। आई एम आउट ऑफ दिस सिस्टम भाई, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। सो दिस इज फॉर योर बेनिफिट। तो इफ यू कैनॉट सी दैट, इफ यू कैनॉट इवन हैव अ बेसिक ओपन रेशनल माइंड टू क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग शोन टू यू, तो क्या कर रहे हो आप? हमेशा उसी स्टेटस को में बैठे रहोगे क्या? तो देखो यार, हम ना सिर्फ 2 एस्पायरेंट्स हैं और हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ये एक आईपैड है, ये एक आईपैड है, ये ईयरफोन है, और बस सच बोलने का मादा रखते हैं। बराबर में ना 3000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। 3000 करोड़, इमेजिन करके देखो। मुझे ना 3000 रुपए का माइक खरीदना था, मैं उससे पहले भी सोच रहा था, एंड दिस इज अ 3000 करोड़ रुपीज इंडस्ट्री। सो यू कैन जस्ट कंपेयर। अगर हम 5 दिन में ही कर सकते हैं तो ये लोग 50 साल में क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द इंटेंट। ओके, विद दिस विल बिगिन ऑन द वीडियो। सो this is the first thing that you have to talk about. Just looking at the marking pattern of this particular paper, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कोचिंग का। इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखो। द लोवेस्ट मार्क्स गिवन हेयर आर 3.5 आउट ऑफ 10 एंड द हाइएस्ट मार्क्स दैट आर गिवन आर 5 आउट ऑफ 10. Similarly, out of 15, 20. What does it make? What does it comprise of? 35% minimum, 50% maximum. याद रखते चलना. Just keep on remembering things. Just keep on remembering this data. 35% to 50%. चलो next. This is another institute. You can say here lowest is 30%, maximum is again 6.5 out of, sorry for that, that was a call. So the highest is 6.5 out of 15 and the lowest is 3 out of 10. So from 30% to 43%. From 30% to 43%. याद हो गया? चलो next. This is again another institute. यहाँ पे 3 6.75, lowest 30%, highest 45%. ठीक है, देख लो एक बार मार्किंग पैटर्न. 4 4.5 4.5 3 4 4 3.5 4. If I tell my 3-year-old niece to write counting, she'll write like that. खैर
आई नॉट टेल हर टू डू समथिंग सो अनएथिकल. ओके, छोड़िए. देन नेक्स्ट इज 3 out of 10 and maximum is 4.25 out of 10. So again 30 to 42.5%. चलिए next. Yeah, so here you can have a look. Minimum is 3.5, maximum is 4.75. 35 to 47.5%. Just keep on remembering this range. कि आपको जब आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपए खर्च करके टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको किस रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं. ओके, मिनिमम मार्क्स मतलब सबसे मिनिमम मार्क्स आपको मिल रहे हैं 35% और मैक्सिमम आपको मिल रहे हैं 47.5%. राइट, सेम चीज 3.25, 6.75. तो ये वही, दिस विल कम अराउंड 45% एंड दिस इज 32%. ओके, डन. देन दिस इज अनदर कोचिंग. दिस इज सम अनदर पेपर. इसमें तो जस्ट लुक एट द मार्किंग. 4.5, 5, 5, 4.5, 5.5, 5, 4.5, 5, 5, 5.5, 4.5, 4, 4.5, 5, 9.5. This is now 20 में से 9.5, 9, 10, 9, 9.5, 10. सबसे बेकार आंसर जो मैंने इस पूरे शीट में लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, वो 40% का है. और सबसे बढ़िया आंसर जो लिखा है, जिसमें बिल्कुल मोती जड़ दिए हैं, वो 50% मार्क्स डिजर्व करता है. जब मैंने इवैल्यूएटर से बात करी यूपीएससी के, तो मुझे पता चला, है ना, मुझे भी पता चला जब मैंने ये शीट देखी कि आप यहाँ पे 40% से 50%. और करो टारगेट, करो टारगेट. मे बी ये आपकी फेवरेट, इसमें से कोई फाइल आपकी फेवरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की है. लिखो, आओ, करो हेट कमेंट. आपको लग रहा है कि डर लगता है, करो हेट कमेंट, करो भक्ति, करो अंधभक्ति, करो पर्सनैलिटी कल्ट की पूजा. ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज. करो, करो हेट कमेंट करो. लेकिन ये बात सोच लेना कि पैसे ना आप दे रहे हो, यू आर अ कंज्यूमर. 3,000 करोड़ ना, ये किसी और के नहीं है, आपके हैं ये. So just because you love somebody, just because you follow somebody, does not mean that you fail to see what wrong they are doing. Four point five, 4.5, 5, 4.5, 5, 5.5, 7, 6.5, 5.5, 7.5. मिनिमम 45%, मैक्सिमम 55%. आप समझ रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ? मिनिमम मार्क्स कितने मिल रहे हैं आपको? 45%. मैक्सिमम कितने मिल रहे हैं? 50%. कितना भी खराब आंसर लिख के आओ, 45% मार्क्स मिलेंगे. कितना भी अच्छा लिख के आओ, 50% मार्क्स मिलेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू. ठीक है, आई हैव शोन यू द थिंग्स दैट आई वांटेड टू. ऑल राइट, नाउ लेट मी शो यू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ्स. समझ में आ गया? ये बिग 5 है. इसका मतलब ये नहीं है प्लीज कि ये बिग 5 तक लिमिटेड है. नहीं है लिमिटेड, खुल के बोल रहा हूं. एनीबडी, लेट मी टेल यू दिस, जस्ट चेक एनीबडी. और मैं ना यहां पे ओपनली एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने भी जब इवैल्यूएशन करवाया था तो ये गलती करी थी, क्योंकि नहीं पता था मुझे. लेकिन मैं कौन हूं यार? मैं एक एस्पायरेंट हूं. मैं कहां से सीख रहा हूं? मैं तो जो मेरे को इवैल्यूएशन मिलके आया, जो मैंने 30,000 रुपए पे करके इवैल्यूएशन लिया, उसमें देखा ये मार्किंग है, तो जब आगे पास ऑन किया तो उस मार्किंग को पास ऑन कर दिया. मैं लेता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे से गलती हुई थी. लेकिन मेरे पास चारा क्या है? जब मेरे पास तो कोई सोर्स था ही नहीं ना, कोई रिसोर्स था ही नहीं ना. ये लोग तो क्लेम करते हैं ना कि इन लोगों के यहां तो फैसिलिटेशन का फंक्शन होता है, तो भी यूपीएससी के लोग आ रहे होते हैं, तो भी मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं. इनको नहीं पता कि कैसे हो रही है अंदर, या फिर दे डोंट गिव टू सेंस अबाउट व्हाट एस्पायरेंट इज गोइंग थ्रू. सो टाइम फॉर द ऑफिशियल प्रूफ्स. व्हाट आर दीज ऑफिशियल प्रूफ्स? लेट मी डिस्क्लोज इट. ये अलग अलग स्टेट पीएससीज के चेक्ड इवैल्यूएटेड कॉपीज हैं, मॉक नहीं. सुन लीजिए ध्यान से, स्टेट पीएससीज की चेक्ड इवैल्यूएटेड शीट्स, क्योंकि यूपीएससी की इवैल्यूएटेड शीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं. तो स्टेट पीएससी की शीट देख के हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा सेम मार्किंग स्कीम हर एक स्टेट पीएससी में फॉलो होती है जो यूपीएससी में फॉलो होती है. क्यों? क्योंकि यूपीएससी इवैल्यूएटर्स को ट्रेन करता है, क्योंकि सेम इवैल्यूएटर्स होते हैं. गुजरात में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा, सर्च कर लेना, कभी यूट्यूब पे दिख जाएगा. उसके प्रोफेसर स्टेट पीएससी में भी चेक कर रहे होते हैं और यूपीएससी में भी चेक कर रहे होते हैं. वही प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, हर जगह शीट चेक कर रहे होते हैं. सेम मार्किंग स्कीम, सेम इवैल्यूएटर, सेम पैटर्न. सो दिस इज एज क्लोज टू ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एज वी कैन गेट. ये मार्किंग पैटर्न सबसे ऑथेंटिक है जितना आप यूपीएससी के क्लोज जा सकते हो. एज क्लोज टू नोइंग द एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न. देखें, लेट्स स्टार्ट. चलो,
सबसे पहले आई शो यू गुजरात पीएससी का, एंड आई वुड लाइक टू थैंक, दिस इज AIR 1 की शीट। मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 15 में से 4, मैक्सिमम 15 में से 13, 13 आउट ऑफ 15। द रेंज इज 26 to 86%। नेक्स्ट, मिनिमम 0 भी है जिसमें पर वो क्वेश्चन उन्होंने लीव किया है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 0.5 आउट ऑफ 5, 0.5 आउट ऑफ 5। मैक्सिमम 9 आउट ऑफ 10, 10% और 25% से लेके 85 और 90% तक की रेंज में मार्क्स मिलते हैं। यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आप आंसर सही लिख रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप आंसर सही नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अच्छा आंसर लिख रहे हो तो क्यों आपके मार्क्स कटेंगे? वाई वुड इट बी इन द रेंज ऑफ 50%? देख लो, यही सेम यूपीएससी में आते हैं मार्क्स की नहीं आते हैं इसी रेंज में। 50%, 55%, 60%, यही रेंज है ना। और इस पे मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि देख लो जाके जब फाइनल उसमें 125 आ रहा है 250 में से, तो हर क्वेश्चन पे 50% ही मिलेंगे। बेवकूफ हो क्या? बेसिक कॉमन सेंस नहीं है क्या? अगर 4+4 का एवरेज लोगे तो भी 4, और अगर 0 और 8 का एवरेज लोगे तो भी तो 4 ही है। दिख रहा है प्रूफ में अब? चलो नेक्स्ट, सेम चीज 10 में से 0 भी मिलते हैं, 10 में से 7 भी मिलते हैं। बट चलो कोई बोल देगा ये 7 तो, ये 0 तो इसलिए मिला होगा, 5 में से 1 भी मिला हुआ है, तो ये कितना कन्वर्ट होता है? 20%। ये कितना है? 70%। दिख रही है अब रेंज? खुल रहे हैं आंखें? समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग विद यू? 50 साल से चल रहा है ये। सेम यहां पे ये देख लो, क्वेश्चंस लीव कर रखे हैं, फिर भी 56% स्कोर हो रहा है, और इतने ही तो यूपीएससी में आते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चंस लीव करके आओ, लेकिन इस बेवकूफी से तो बाहर निकलो कि मिनिमम 4.5 और मैक्सिमम 5.5 मिलते हैं। मेरे को यार एक बात बताओ, जब आपको 5.5 मार्क्स मिल रहे हैं 10 में से, आपके दिमाग में नहीं आ रहा एक बार भी कि यार ये क्वेश्चन मैंने इतना अच्छा लिखा था इस पे 5.5 ही मिले हैं, ये क्वेश्चन मैंने इतना खराब लिखा था इस पे 4.5 मिले हैं, कोई तो डिफरेंस होगा? डू यू नॉट गेट इट इन योर हेड? हाउ ब्लाइंड कैन अ पर्सन बी? व्हाई डू यू नॉट आस्क क्वेश्चंस इवन आफ्टर पेइंग? मैंने पूछा था, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, पता है क्या हुआ? उससे पहले 83 मार्क्स दे रखे थे, फिर बढ़ा के 122 कर दिए थे। दिखाओ इसका भी प्रूफ, करो टारगेट, फिर इसका प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, सेम चीज है यहां पे भी देख लो, 10% से 65% की रेंज है। चलो एक हो गया, नेक्स्ट देखें, तमिलनाडु उठाएं, सेम चीज देखते हैं। इवन इवन ब्रिलियंट, 10 में से 10, 15 में से 15, 15 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10। क्या रेंज है? फ्रॉम 30% to 100% and 20% to 100%. If you will write good answers, you will get marks. If you will not write good answers, you will not get marks. The range is very varied. People get from 60s in ethics to 140s in ethics. कैसे? Even after attempting the entire paper. अरे क्यों बच्चों के साथ खेल रहे हो यार? अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स खत्म हो रहे हैं लोगों के। Please bring an end to this era of paid misguidance. This is a clarion call. If you are listening to me here, and if you have a reach of even 2 people, it is your responsibility to the society, to the aspirant community, that you please take this forward. कहीं भी देख लो सेम है सब, 12 आउट ऑफ 15, फ्रॉम 2 आउट ऑफ 15 to 12 आउट ऑफ 15, ये रेंज है। But what will you say? 4.5, 5.5, 4.5, 4.5, 5.5, 4.5, 4.5. यूपीएससी वैल्यूएटर्स तो दोस्त हैं हमारे। चलो लेट अस लुक एट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम नाउ। सी 5 आउट ऑफ 5 एंड 0.5 आउट ऑफ 10। कैलकुलेट करो परसेंटेज, चलो करो करो। 2.5 आउट ऑफ 2.5, 2.5 आउट ऑफ 2.5 is 0 आउट ऑफ 3, 7 आउट ऑफ 10। 100%, 70%, 0, 65% है कि नहीं है सारे की सारे रेंजेस में मार्क्स? हाँ, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा नया बच्चा? नए बच्चे आए मार्केट में।
कोई नया आ रहा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत बोल रहा है. ओके, 55%, 20, 40%. So you can just calculate the range. Now let us look at Odisha PSC. सिमिलर चीज आपको दिखेगी यहाँ पे 2 out of 10 and 12 out of 15. तो 20%, 60%. From 20% to 60%, that is the range. Odisha PSC. Let's look at Chhattisgarh PSC. From 0.5 out of 4, 0 out of 4 to even 8 out of 15 to, रुको रुको दिखाता हूं, फ्रॉम 1 out of 8 to 6 out of 8, 12.5% से 75% की रेंज. नाइस. फ्रॉम 1.5 out of 8 to 7.5 out of 10, फ्रॉम 18% to 75% की रेंज. Who is responsible for this mess that you have created? जिन लोगों के 4 मेंस 5 मेंस नहीं निकले, वो अब किसको कॉल करेंगे बताओ मेरे को. आई वॉन्ट दिस आंसर. दिस इज माई क्वेश्चन टू यू. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट यू हैव क्रिएटेड? देख लो, ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है. मेन एग्जामिनर ने भी 2 दिए हैं, हेड एग्जामिनर ने भी 2 दिए हैं, और अगले एग्जामिनर ने भी 2 दिए हैं. अगर अच्छा आंसर लिखोगे तो मार्क क्यों नहीं मिलेंगे यार? बट आपको बता दिया कि मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज 5 या 5.5. तो आप उसके ऊपर सोच ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कैसे इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि बताया नहीं जा रहा है. जहां आपका सबसे घटिया आंसर है, जहां आपको शायद 10 में से 0 मिलना चाहिए था, वहां पे आपको 10 में से 4 दे दिया गया. आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है. ओके, सिमिलरली हियर यू कैन सी इट. सो दिस इज द प्रूफ दैट आई वांटेड टू शो यू फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स, 5 ऑफिशियल सोर्सेज. नाउ आई लीव इट अप टू योर विजडम टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है, कि आप क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्यों आप जाग नहीं रहे हो. ये तो मैंने नहीं बनाई ना मार्कशीट्स, ये तो ऑथेंटिक मार्कशीट्स है ना. दिस इज माई कॉपी. ओके, ये नाम नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज माई शीट, माई पर्सनल शीट विच आई रोट फॉर माई मीन्स. मिनिमम मार्क्स मिले हैं 3.5 आउट ऑफ 10, मैक्सिमम मिले हैं 4 आउट ऑफ 10. ठीक है, अब मुझे क्या लगेगा कि दिस इज माई हाईएस्ट पोटेंशियल एंड दिस इज द लोवेस्ट थिंग. मैं कितना भी खराब आंसर लिखूं, इतने तो मुझे मिल ही रहे हैं, एंड कितना भी अच्छा लिखूं, दिस इज व्हाट आई एम गोना गेट. लेट मी शो यू, है ना, जस्ट एक सेकंड लगेगी. लेट मी शो यू 3.5 वाला है ना, तो मैंने बहुत ही खराब लिखा है. लेट मी शो यू इसका इवैल्यूएशन एक बार. लेट्स सी इसका इवैल्यूएशन. Okay. NCST can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that improve the voice of tribals. कितना सिंपल क्वेश्चन है. NCST जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा अगर बाकी मैकेनिज्म्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई रोट एन इंट्रोडक्शन, देन आई शोड डायरेक्टली हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की सपोर्ट किस तरीके से मिलना चाहिए बाकी मैकेनिज्म से, और मैंने वो मैकेनिज्म डिस्कस करने शुरू किए. 1 2 3 4 5 6 सब मैकेनिज्म डिस्कस किए. फिर मैंने बताया, क्योंकि डिस्कस कीवर्ड दे रखा था, सो आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनसीएसटी टू ऑल्सो बी रिफॉर्म्ड, व्हाट आर द इश्यूज इन एनसीएसटी एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड इन एनसीएसटी, एंड देन आई कंक्लूडेड माई आंसर. लेट मी शो यू द पैथेटिक लेवल ऑफ इवैल्यूएशन हियर. यू आर आस्क्ड टू डिस्कस द रोल एंड पावर ऑफ एनसीएसटी. कहां पूछे इस क्वेश्चन में? पॉज करो वीडियो. Where is role and power of NCST asked? क्योंकि आपके मॉडल आंसर में लिखा है, तो इवैल्यूएटर को पता है कि मॉडल आंसर एज इट इज कॉपी कर देना है. मैंने जो क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करी है, कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है. इफ आई एम राइटिंग योर मॉडल आंसर, आई एम गेटिंग मार्क्स. कितने मार्क्स? 4. इफ आई एम राइटिंग समथिंग डिफरेंट, इफ आई एम मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट एम आई गेटिंग? 3.5. वाओ, तालियां. देखो आगे, यहां पे मैंने क्या डिस्कस किया है, द इश्यूज ऑफ एनसीएसटी. ठीक है, ये देखो, यू कैन डिस्कस सम लेक्यूनाज ऑफ एनसीएसटी. अरे भाई क्या है ये, और ये तीनों पॉइंट्स में क्या है? कमिटी भी मेंशन कर दिया, एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया, कह रहा है यू कैन डिस्कस सम लेक्यूनाज ऑफ एनसीएसटी. तो निकलो इससे बाहर. प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. डोंट ये अंधभक्ति करना बंद करो. लास्ट में आई जस्ट शो यू शिविन की फाइल. सो दिस इज, इसको मिनिमम मिले हैं 3, मैक्सिमम मिले हैं 3.75, मिनिमम 5.5, मैक्सिमम 7. GS2 की फाइल है ये, 96.25. एंडेड अप स्कोरिंग इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. एक्चुअल यूपीएससी में 113. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स बढ़ गए. नाउ लेट्स कंपेयर. ये एथिक्स की फाइल है, इसमें 93 दे रखे हैं. सिमिलर मार्क्स लगभग लास्ट वाले से, मार्क्स कम होकर रह गए 85.
क्यों? क्योंकि टाइम होता तो मैं आपको दिखाता कि कितना रद्दी वैल्यूएशन है। जिन क्वेश्चंस में मार्क्स मिलने चाहिए थे उनमें मार्क्स दे नहीं रखे हैं, और जिन क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट बताने थे, जिनमें बताना था कि आपने डिमांड मिस किया, उनमें डिमांड नहीं बता रखी है कि क्या होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा यार? कैसे पता चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं? इफ यू डू दिस टू अस, इफ यू प्ले विद आवर कैरियर। ठीक है, सो दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। ओके, लास्ट में बोल देता हूं, पता चले कल को आके लीगल केसेस कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पास तो है नहीं भाई 3,000 करोड़ रुपए टू डिफेंड माई सेल्फ, एंड आई लीव दिस वीडियो अप टू यू। ठीक है, एंड आई नो दैट दीज आर वेरी बिग जाइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, एंड आई एम टेलिंग दिस ओपनली। इफ एनीथिंग हैपन्स टू माई चैनल, if any strikes, anything happens to my channel, it will be, छोड़ो, ठीक है? This is just it. If you think this message needs to go forward, please take it forward. I leave it completely onto your wisdom. मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, it is completely onto you. If you think that I took you through a clickbait of things, so मैंने सब कुछ झूठ बोला है आपसे, it's okay. You can punish me if you think that I spoke an iota of truth. It is up to you to spread this word. ठीक है, I'll leave it up to your wisdom. I think you are intelligent enough to tell things. I'll wind this video up here. Please understand कि इसका implication आपके कैरियर पे है. You will not know what you are doing wrong. And then people come and ask me कि भाई toppers, yeah, this is the last thing that I want to talk about. People come and ask कि toppers तो कह रहे हैं ना कि हमने आंसर्स लिखे थे. अरे and somebody would top, yes. This is an exam. दिस डज नॉट डिपेंड। अगर सबके घटिया मार्क्स भी आएंगे, फिर भी जिसके सबसे कम घटिया है वो रैंक लेके आएगा। दिस डज नॉट मीन दैट रॉन्ग इज नॉट हैपनिंग। किसी ना किसी की रैंक तो आई जाएगी ना। प्लीज स्टॉप गिविंग दीज होलो आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एवरी टॉपर हु सक्सीडेड इन दिस एग्जाम, देर आर अ लैक स्टूडेंट्स हु आर इन द ट्रैप। तो वो जब तक अपनी गलतियों से ट्रैप में है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ दे आर इन दिस ट्रैप बिकॉज ऑफ पेड मिस गाइडेंस, इट इज अ डिजास्टर, अ पैथेटिक थिंग. So now is the time to bring an era of paid misguidance to end. An end to the era of paid misguidance. I promise you that I'll be doing it, talking about the alternatives. Just go and watch the SFG 2024 video. This the ultimate strategy. You will come to know what are the alternatives about. मेरे पास नहीं है 1 लाख लोगों की कॉपीज चेक करने के resources, but I'll do what best I can do. I'll tell you how to write answers. I'll tell you how to improve upon your answers. मैं करूंगा वो चीज, मैं करता आया हूं, 2.5 साल से बंद कमरे में बैठ के कर रहा था, अब ओपन में आके करूंगा. With this is Satyam Jain signing off. Please do your duty. Please be a good human being. Thank you so much. Jai Hind. Vande Mataram.